Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your mentor Harshvardhan Tripathi and today I am back with another interesting video, or you can say a topic which is not really common but eccentrically very important. अभी आपने हमेशा सुना है justice delayed is justice denied. मैं आपको नया चीज़ बताता हूँ. Justice hurried is justice buried. तो justice hurried is justice buried and justice delayed is justice denied. ये जूरिस्प्रूडेंस के दो ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत कॉमन है बट इनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है. सिविल केसेस में जब भी कोई प्लेंट फाइल होती है, राइट, जब भी कोई स्टेटमेंट कोर्ट के सामने व्यक्ति लेके जाता है और बोलता है कि मेरे साथ ये सिचुएशन है, these are the facts and circumstances and because of which my certain right is getting affected and that is why I'm coming before this honorable civil court where I have prayed for certain relief which is within the power of this particular court. In the very first issue, we try to convince the court with respect to the maintainability of the plaint, as well as we try to convince the court by indicating that this very court has the jurisdiction to try such and such matter. After that, the court looks into the plaint, looks into the averments made, and then decides to conduct a trial on this. For the very same reason, there is another legal principle which is called as audi altrum partem, which means right to be heard. And this is an enabling provision, or you can say a concept, which allows the court, or whereby the parliament has considered this principle in framing laws where the defendant is given the reasonable amount of time to appear before the court, defend his suit, defend his right, defend his title, defend his property, and whatever are civil liabilities, and ensure to the court that he is not the correct person to either be made in a party in the suit or his rights are more superseding than on the rights of the plaintiff. Now, right to be heard is very important here. So, any matter which is decided without giving notice, number one, and number two, in that notice, without giving sufficient time to the defendant to defend his position, are considered to be illegal orders. And thereby, this concept has emanated out of jurisprudence, application of Article 14, principle of natural justice, whereby procedural statutes have considered the time limit within which the defendant can file his reply. Well, in civil matters, whatever plaintiff takes to the court is called as plaint or is called as suit, and whatever reply is being given by the defendant or the respondent is called as his or her written statement. Well, respondent, the term respondent is not correct here. We would rather choose the word defendant because respondent appears in appeal matters where there is an appellant and there is a respondent. So whatever replies are filed to with respect to a plaint is called as a written statement. Now let us say the plaint has been filed in the month of July 2024 and the matter is urgent if we hear the plaintiff. The statute that governs written statements or the replies filed by the defendant generally is Civil Procedure Code. In that regard, Order 8, Rule 1 of CPC. But let us say there is a special statute created for protecting special rights, and in the present instance we are taking Consumer Protection Act. If there is any other time limit mentioned in Consumer Protection Act, we would regard that special law to be trudging over the application of general law. And the statutory limit given within the special law has to be complied with. Now, let us say you had filed this particular matter in the month of July and CPC Order 8 Rule 1 says that 90 days time period can be given. Let us suppose that usually 30 days time period is given, which can be extended up to 90 days and no more than 120 days. I'll take you to the wordings of Order 8 Rule 1 also, but let us hypothetically assume that the law says that within 90 days
the other person has to appear before the court and file a reply. Okay? Imagine a case where the defendant is not able to reach to the court for so and so reasons, and the order is given by the court against him. Now, this is certainly defeating the principle of natural justice, equality before law, audi alteram partem, and whatever we might use to protect the defendant. So, the question eccentrically appears before us. The primary root question that needs determination of the Supreme Court is that whether the statutory time period limitation in filing a reply or a written statement on part of defendant should be considered full and final. Whether the courts can apply their discretion as to the merits of the case on case-to-case basis and determine whether any additional extension can be provided to the defendant if the defendant is able to prove to the court that there were so and so unavoidable reasons were in existence that he was not able to appear before the court, or appear in person, or appear or make sure that his reply written statement is available before the court. Now, these are the root questions that I am going to discuss. Now, this particular allowance by the court to allow the defendant to file a written statement beyond the prescribed statutory limit is called as condonation of delay, where the defendant will appear before the court, will tell the court that there were reasons in existence which he could not have avoided, and because of which he was not able to file his written statement within so and so period. Well, there can be special statutes governing such procedure for that particular subject matter for which the statute is framed, or there is in the absence of any special statutes, the application of civil procedure code is there which defines this particular provision. So, I hope you are clear with the concept. I hope you are clear by the word condonation of delay. I hope you are clear that if there is a conflict between general law and a special law, the general law will prevail over, the special law will prevail over general law. However, the special law cannot go beyond the scope of general law, can stay within the limit of general law, and both the general law and the special law should follow all the eccentric limits, root limits, pertinent limits of Constitution of India. Moving forward, let me take you to the present matter. What are the legal principles involved, which is related to right to file a written statement, not foreclosed. Okay, not foreclosed. Now, the limit for filing written statement, Order 8, Rule 1. Let us try to read what it states to understand कि भाई क्या चीजें हमें पढ़नी है. Okay. So, yeah. So, the defendant shall, at or before the first hearing or within such time as the court may permit, present a written statement of his defense. Okay. Provided, what are the conditions now are given? Where the defendant fails to file the written statement within the set period of 30 days, he shall be allowed to file the written statement on such other day as may be specified by the court. Which means, first principle indicates that the court has the power to allow the filing of written statement beyond the period of 30 days. And the reasons for allowing such application to file a delayed written statement have to be recorded in writing. And certain cost also can be taken from, not can be, but will be taken from such and such defendant. But the limitation that is there is, shall not be later than 120 days from the date of service of summons, and on the expiry of 120 days from the date of service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the written statement, and the court shall not allow the written statement to be taken on record. So, bare minimum is 30 days. If you are coming after 30 days, what will be required? First, you need to pay additional cost which will be indicated by the court, and you need to convince the court. As to what happened, and the courts will record reasons in writing.
record in writing that why such delay, condonation of delay is being condoned. However, no such application can be allowed beyond 120 days. No such application can be allowed beyond 120 days. It is important that on the very first date of hearing you file the written statement, present your case or defense. Otherwise, it is expected usually that within 30 days you need to file the written statement. If you are appearing on the 31st day, you have to pay certain cost which will be imposed by the court. You need to convince the court that so and so reasons existed and because of which you were not able to file the written statement within 30 days, and the court has to record the reasons in writing for allowing you your application of condonation of delay. But such condonation of delay cannot be beyond 120 days, and if you are coming after on the 121st day, your right to file the written statement or present your matter before the court is forfeited, and the court shall not allow the written statement to be taken on record. This is Order 8 Rule 1 of CPC. Now, this is a general procedural law that is applicable on all civil matters if there is no statute to indicate contrary, to the contrary. Going to the next part here, you will find that there is a recent judgment of the Supreme Court that we are basically studying right now. That is Ricardo Constructions Private Limited versus Ravi Kukian and others, which is a civil appeal number 9958 of 2024 before the Supreme Court of India. In the recent, now this is related to a consumer forum case. The Supreme Court has permitted the opposite party to file a written statement in the consumer complaint after the expiry of the statutory time limit. Now, this is not a general principle, okay? This is not a general principle. The general principle is that the courts will not surpass the limitations, the time limitation indicated under statute. Why? You are thinking कि सर कोर्ट अपना डिस्क्रिशन क्यों नहीं लगा सकता? आखिरकार सीपीसी में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो कोर्ट के इस डिस्क्रिशन को टेक अवे कर रहा है? I will take you back to the provision and I'll make you read the word shall. You will find here that it is written the court shall not allow the written statement. जैसे ही इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे ये वर्ड shall है, जैसे इसको यूज किया जाएगा, ये वर्ड इंडिकेट करता है कि पार्लियामेंट ने जब ये लॉ बनाया था तो उस टाइम पे उनको पार्लियामेंट ने कोर्ट से डिस्क्रिशन छीनने की कोशिश करी है, यानी कि कोर्ट को ऐसा करना ही पड़ेगा, कोर्ट का अपना कोई डिस्क्रिशन नहीं है. तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ यही कहता है कि कोर्ट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड से ज़्यादा नहीं करेगा. अब यही एक अधिवक्ता के पेशे का कह सकते हैं फ़ायदा है, या यही वो एरिया है, यही वो लिमिट्स हैं इस प्रोफेशन की, जो ये बातें वकालत करने वाले को या पढ़ने वाले को पता होती है. आम आदमी को स्टैट्यूटरी टाइम लिमिटेशन कितना लगता है ये तो ना पता होता है, ना उसके बस में होता है कि वो जान पाए. गूगल और इंटरनेट के ज़माने में आप पता कर सकते हैं कि हाँ बेयर मिनिमम कितना दिन है, पर एक्सटेंशन कितना अलाउड होगा कितना नहीं होगा, इसके लिए आपको एक अधिवक्ता की सलाह और अधिवक्ता के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती ही है. तो ये नुआंसेस हैं आपके इस प्रोफेशन के, जो कि आपको अभी से समझ लेने चाहिए, यूजी एस्पिरेंट को समझ लेना चाहिए कि इस प्रोफेशन में यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड एक दुनिया है प्रोसीजरल लॉ की, जहाँ पे पूरी वकालत छुपी हुई होती है. जिसको प्रोसीजरल लॉ अच्छे से आता है, समझ में आता है, वो वकालत के क्षेत्र में बहुत कम समय में अच्छा पेडेस्टल, अच्छी पोजीशन प्राप्त करता है. एनीवे, गोइंग अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स नॉट गो ऑफ द टॉपिक while I am trying to indicate you or give you certain lessons which you should know while you are preparing for your CLAT examination. Here you will find that the reason that the court is given or the court has allowed, Supreme Court has allowed delayed filing of written statement is that the copy of the complainant was not given to him. If the copy of the complainant was given to him, then such and such principle, the such permission was not applicable. So a copy of the complainant was not given to the victim, and that is why extended delay is allowed. Extended delay is allowed. ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको सिस्टमैटिक वे में लेके जा रहा हूँ. It was a case where the appellant was denied the right to file a written statement in response to the consumer complaint. मामला नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सामने आया और उन्होंने appellant के राइट टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया, और बात फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली अलाउ किया. एंड दिस इज द केस दैट हैज अपीयर्ड, राइट, दिस इज द केस दैट हैज रिसेंटली अपीयर्ड, अभी अगस्त में ही आया है.
सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, रिकार्डो कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रवि कुकियान एंड अदर्स। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस, रीडिंग दिस। चलिए आगे देखेंगे। अब इसमें ये एक्टिविटी है छोटी सी जो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। इस एक्टिविटी में आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप किस तरीके से प्रिंसिपल डिटरमाइन कर पाते हैं एक रैंडम पैसेज से। तो मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इस पैराग्राफ को एक बार रीड करिए बिफोर यू गो इन फर्दर इन टू वट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो आई विल एक्सपेक्ट कि आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ पे रीड करिए पूरा पैसेज। आई बिलीव आपने ऐसा किया होगा ताकि हम आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएं कि किस तरीके से लीगल प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना रहता है। अब जैसे ये वर्ड हमारे सामने आ रहा है दैट इट वाज कंटेंडेड बाय द एपेलेंट, इट वाज कंटेंडेड बाय द एपेलेंट दैट द राइट टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट वाज रॉन्गली फोरक्लोज्ड बाय एनसीडीआरसी। अब जो भी चीज कंटेंडेड होती है इसका रूट वर्ड होता है कंटेंशन, यानी एक पार्टी कह रही है कोर्ट में। आप तो सिंपली समझिए कोई एक पार्टी है, ठीक है, कोई एक पक्षकार है जो कह रहा है कोर्ट में, वादी है, पक्षकार है जो कह रहा है कोर्ट में, ठीक है। देयर इज वन पार्टी विच इज स्टेटिंग दिस एंड दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल, दिस कांट बी अ प्रिंसिपल। व्हाई? बिकॉज देर आर order of the court given. अब देखिए, it added that since no copy of the complaint was furnished by the complainant's counsel to the appellant's counsel, therefore it would not be possible to file a written statement. Now this explains the delay. This explains the delay, or this explains the inaction of the party to file a written statement. Now this appellant's contention was accepted by the court. Now this becomes a principle. सेकेंड पार्ट में ये प्रिंसिपल हमारे सामने निकल के आ रहा है क्योंकि इसने जो कंटेंशंस दिए उसको कोर्ट ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड जस्टिस राजेश बिंदल की कोर्ट ने एनसीडीआरसी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। कौन सा ऑर्डर दिया था एनसीडीआरसी ने? एनसीडीआरसी ने मना कर दिया था रिटन स्टेटमेंट अलाउ करने से, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, यानी अब रिटन स्टेटमेंट वो फाइल कर सकता है। अब रिटन स्टेटमेंट उसको कहां देना है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एनसीडीआरसी के सामने? रिटन स्टेटमेंट उसको उस अथॉरिटी के सामने देना है जहां पे उसने रेमेडी फाइल करी थी, ठीक है। एनसीडीआरसी के सामने तो वो अपील लेके आया था। एंड ऑब्जर्व दैट अलॉन्ग विथ रिकॉर्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द नोटिस बाय द डिफेंडेंट्स काउंसिल, observed that along with recording the acceptance of the notice by the defendant's counsel and the time granted to file a written statement, the order should also record that copy of the complainant has been supplied by the counsel for the complainants to the counsel for the opposite party. ये सारी चीज़ों को आप अपने ऑर्डर में मेंशन करिए क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि हमेशा रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए। कोर्ट ने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, वाई कोर्ट ने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्यों एक्सटेंड करी, उसका रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये आपने सीपीसी में पढ़ा हुआ है, ऑर्डर 8 रूल 1, ओके। आगे देखेंगे, 3 जजेस का अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने वैसा बहुत बार सवाल आया था कि एक बार सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया था एक मामले में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आप स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड के बियॉन्ड नहीं जा सकते। स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड जो रिटर्न रिकॉर्ड फाइल करने का दिया गया है सीपीसी में वो 30 दिन का दिया गया है, और फर्दर एक्सटेंशन, सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 30 दिन का दिया गया है कंज्यूमर कंप्लेंट्स पे, और फर्दर एक्सटेंशन जो हो सकता है वो 15 डेज का हो सकता है, यानी टोटल टाइम पीरियड 45 डेज अलाउड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। लेकिन सीपीसी के अंदर तो वो 120 डेज था। मैंने आपको क्या बताया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है तो वो सीपीसी नहीं लगेगा, वहां पे सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा। तो 45 डेज का टाइम कॉन्डोनेशन अलाउड है। क्या 45 डेज के बियॉन्ड भी कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल? तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच के सामने आया, उन्होंने मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने क्या लिया, एक डिसीजन लिया जहां पे बोला कि कोर्ट्स मेरिट्स पे अपना डिस्क्रिप्शन लगा के फर्दर एक्सटेंशन दे सकती है, क्योंकि सीपीसी में तो 120 दिन का दिया गया है। अब फिर ये मामला, क्योंकि 2-3 जजेस की बेंच ने अलग अलग दे दिया था और फिर वहीं पे 2 जजेस की बेंच ने भी कुछ अलग ही डिसीजन दिए, तो ये मामला फिर 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रेफर किया गया। अच्छा, जब ये मामला 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रेफर किया गया था, दिस वाज टू बी फाइनली डिसाइडेड, तब तक क्या है, 3 जजेस की बेंच ने फाइनल डिसीजन दे दिया और डिसअलाउ कर दिया रिटर्न स्टेटमेंट का फाइल करना बियॉन्ड द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। अब फिर 5 जजेस का जब ये कोर्ट का फैसला आया तो उसमें कोर्ट ने बोला
यानी सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के माध्यम से इस व्यू पॉइंट को एस्टैब्लिश किया कि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में अगर डिले हो रहा है और वो एक्सप्लेन्ड है, वो डिले क्या है, एक्सप्लेन्ड है, उस डिले का कारण जो है वो बता दिया जा रहा है और कोर्ट को उसकी बात में सच्चाई दिखाई दे रही है, उसकी बात में मेरिट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और वो लीगली बता रहा है कोर्ट को, वैलिडली बता रहा है कोर्ट को कि वो क्यों नहीं रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर पाया, या किसी भी तरीके से समन उस तक नहीं पहुंचा था, या केस एडमिनिस्टर हुआ है, इसकी नोटिस उसको नहीं प्राप्त हुई थी, या सामने वाले व्यक्ति ने अपनी प्लेंट में क्या कहा है ये इंफॉर्मेशन उसको फर्निश नहीं की गई थी, इस तरह के कारणों से वो अगर अपने डिले को एक्सप्लेन कर दे रहा है, राइट, तो कोर्ट एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के बियॉन्ड जाके उसको अनुमति दे सकता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की। तो यहां पे पॉइंट क्या है कि 5 जजेस के इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जब ये एक्सटेंडेड डिस्क्रिशन दिया कंज्यूमर कोर्ट्स को, तब तक 3 जजेस की बेंच ने ऑलरेडी किसी एक मैटर में डिनाई कर दिया था। फिर एक एप्लीकेशन फिर से उन 3 जजेस के सामने फाइल हुई जहां पे बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि दूसरे बेंच के सामने आया, दूसरा मामला था उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बनाई गई उसके ऑर्डर 3 जजेस की बेंच पे लागू होंगे। तो क्या ये 3 जजेस की बेंच को अपने ऑर्डर को बदलने की जरूरत है? तो यहां पे 3 जजेस की बेंच ने कहा कि देखिए कंज्यूमर हमारे सामने जो हमने टाइम डिले डिनाई करी है वो इसलिए डिनाई करी है क्योंकि पहली बात तो डिफेंडेंट जस्टिफाई नहीं कर पाया कोर्ट को, और दूसरा क्या है, पूरी कंप्लेंट की इंफॉर्मेशन फर्निश की गई थी। तो कोई भी टेक्निकल डिफेक्ट नहीं है, लीगल डिफेक्ट नहीं है, और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का कोई कोजेंट रीजन नहीं है जिससे हम संतुष्ट हों। इसीलिए हम 3 जजेस के ऑर्डर ने बोला कि हम अपने ऑर्डर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। 5 जजेस के ऑर्डर को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें बताया गया है कि अगर व्यक्ति डिफेंडेंट आके कोर्ट को कन्विंस कर दे कि कुछ ऐसे मटीरियल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया, जैसे कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ, उसको नोटिस नहीं मिली, जैसे उसको समन नहीं पहुंचा उस तक, जैसे उसको जो प्लेंट फाइल हुई है उसकी इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की, तो ही कोर्ट फर्दर डिस्क्रिशन अलाउड कर सकता है या नहीं। हम यहां पे ये समझें, जनरली स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड अगर मेंशन्ड है तो कोर्ट उसके बियॉन्ड डिले को कंडोन नहीं कर सकता, कंडोनेशन ऑफ डिले इज नॉट अलाउड। बट इफ द डिफेंडेंट इज एबल टू प्रूव सर्टेन थिंग्स then the court may apply its discretion, and in case to case basis it will look into this particular matter and allow the condonation of delay। तो बहुत सारा लीगल प्रिंसिपल एक साथ अपने को देखने को मिल रहा है, और यूजी एस्पिरेंट के लिए इन सभी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से अपने ब्रेन में मैप कर पाना, प्रोसेस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आपको ये स्किल आ जाएगी तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मेरे सामने जब भी क्लैट में कोई सिचुएशन आती है तो मैं उसकी मैपिंग करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई पार्टी है, ए ने बी से कुछ कहा और फिर कोर्ट ने कुछ कहा, उसके पहले किसी अथॉरिटी ने कुछ किया, अथॉरिटी ने किसी के फेवर में किया, किसी के अगेंस्ट में किया, फिर कोर्ट ने कुछ कहा, तो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ए पे कैसे लगेगा, बी पे कैसे लगेगा, ये पूरी सिचुएशन और प्रिंसिपल में दिया रहता है। तो मैं इस तरह की ब्रेन मैपिंग करके वहां पे क्वेश्चन के बगल में अपने दिमाग में चार्ट बनाने के, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उन्हीं के बीच में मुझे लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई करना होता है। और यही चीज़ मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को सिखाने की भी कोशिश करता हूं कि अगर आपने ये फ्लो बनाना सीख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि रेमेडी आपको ए को देनी है कि बी को देनी है, और रेमेडी अगर देनी है तो कौन सी कोर्ट की 2 रेमेडीज में से कौन सी रेमेडी देनी है, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाता है इस तरह की ब्रेन मैपिंग करने के साथ। तो कभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको मे बी ये सिखाने की कोशिश करेंगे, बट जो पूरा मामला है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब उससे रिलेटेड ये पूरे हमारे सामने फैक्ट्स हैं, आप बहुत आसान काम करिए, सॉरी आप बहुत आसान काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रीड कर लीजिए। आपको पूरी की पूरी बात जो मैंने मौखिक रूप से आपको बताई है वो आपको लिखित तौर पर यहाँ पे एविडेंट मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं, जो टॉपिक्स रहते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं और बच्चों को मटेरियल देते हैं रीड करने के लिए। तो उसने जो ऑडियो मेमोरी, विजुअल मेमोरी और रीडिंग मेमोरी से सब मिलके उसके दिमाग में वो बात छप जाती है। तो आपको भी यूट्यूब पे अगर पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक बता रहे हैं, तो हमारा भी पैटर्न जो है ऑफलाइन क्लास का वो ऑनलाइन क्लास में भी सेम ही रहता है। तो आप शिद्दत से स्क्रीनशॉट्स लें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें कि आखिरकार यहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो अदर डिसीजंस हैं वहाँ पे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट द रिटर्न स्टेटमेंट बियॉन्ड द पीरियड on appropriate case on suitable terms including the payment of cost and to proceed with the matter।
New India Assurance Company Limited and versus Hilly Multipurpose Cold Storage Private Limited case of 2020, it is true that justice hurried is justice buried वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे बताया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर स्पीडी जस्टिस देनी है, और स्पीडी जस्टिस देने के लिए ज़रूरी है कि टाइम पीरियड रिटर्न स्टेटमेंट टाइम पे फाइल हो, यानी 45 दिन के अंदर। लेकिन कुछ केसेस में अपोजिट पार्टी जो है हार्डशिप अगर फेस कर रही है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट को कंप्लीट करना है, यानी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सिंपल रिड्रेसल और स्पीडी रिड्रेसल में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हार्डशिप्स जो कि एक पार्टी फेस करती है, राइट, हार्डशिप्स, ठीक है, दैट कांट बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे एक फाइनल केस है डायमंड एक्सपोर्ट वर्सेस यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2021 का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो वर्डिक्ट है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हिली मल्टीपर्पज, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट जो मैंने आपको बताया 2020 का, उसमें फाइनली ये बात बोली थी। और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी केस लॉ है भासिन इन्फोटेक का, जिसमें बोला था कि कुछ एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिशन आ गया है कोर्ट के सामने, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिशन pending reference. The court held that no case for interference is made in the order of NCDRC allowing the application for continuation of delay on merits. तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो पूरी की पूरी यहाँ पे हैं। और फाइनली सीपीसी का एक और केस लॉ है जो कि हमें देख लेना चाहिए, जो लैंडमार्क केस की तरह काम करता है। आपको केस तो याद नहीं रखना है, ना ही केस के नाम याद रखने हैं। याद रखिएगा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर केस लॉज, ओनली द प्रिंसिपल्स। ये याद रखिएगा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द केस लॉज, you don't have to remember the case laws, only the principles. केस लॉज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल याद होना चाहिए। तो प्रिंसिपल में यूजी एस्पिरेंट के लिए है ऑब्वियसली, ये पीजी एस्पिरेंट के लिए नहीं है, ये क्लैट यूजी एस्पिरेंट के लिए है। हालांकि हमारी वीडियोस जो यूजी वाली हैं, लीगल वाली, लीगल एक्सप्लेनर वाली, वो अगर क्लैट पीजी का भी स्टूडेंट देखता है तो उसको भी रीसेंट जजमेंट्स ही पता चलते हैं, तो उसको हेल्प तो ऑब्वियसली होती ही होती है। ठीक है, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द टाइम शेड्यूल फॉर फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 इज टू एक्सपीडाइट एंड नॉट टू स्कटल द हियरिंग। The provision spells out a disability on the defendant. It does not impose any embargo on the power of the court to extend the time. देखिए ये प्रिंसिपल कितना सॉलिड और कितना ब्यूटीफुली वर्डेड है। कह रहा है कि देखिए डिफेंडेंट को की डिसेबिलिटी को बताता है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट क्यों नहीं फाइल कर रहा और किसके बाद नहीं फाइल कर सकता, लेकिन ये किसी तरह का स्टॉपेज नहीं लगाता है कोर्ट की पावर में कि वो टाइम को एक्सटेंड ना करे। The language of the provision to Rule 1 of Order 8 of the CPC is couched in negative form. It does not specify any penal consequence flowing from the non-compliance. ठीक है, मतलब कोशिश की गई है कि रिटर्न स्टेटमेंट टाइमली फाइल करे ताकि केस को टाइम पीरियड पे मेरिट्स पे डिसाइड किया जा सके। The provision being in the domain of procedural law, it has to be held directory and not mandatory. Procedural law के अंदर कही गई बातें अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश वर्सेस ननको एंड अदर्स 2005 में इस पोजीशन को स्टैब्लिश किया था कि प्रोसीजरल लॉ के अंदर कही गई बातें डायरेक्शंस होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते। यानी कोर्ट के पास कहीं ना कहीं एक पावर होती है, डिस्क्रिशन होता है कि वो केस टू केस बेसिस पे प्रोसीजरल लॉ के टाइम लिमिटेशंस के बियॉन्ड भी जाके मदद कर सकता है। The power of the court to extend time for filing the written statement beyond the time schedule provided by Order 8, Rule 1 of the CPC is not completely therefore taken away. तो CPC जनरल लॉ के अंदर power cannot be taken away. Though the Order 8, Rule 1 of CPC is part of procedural law, hence directory, then keeping in view the expeditious trial of civil causes which persuaded the parliament to enact the provision in the present form, it is held that ordinarily the time schedule contained is to be followed as a rule, है ना? एंड डिपार्चर देयरफॉर वुड बी बाय वे ऑफ एन एक्सेप्शन। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि बियॉन्ड टाइम पीरियड जा रहे हैं तो नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड स्लाइड में ही बता दिया था कि ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, कोर्ट को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है उसके लिए, राइट। तो इसीलिए आपको एक प्रेयर ऑफ एक्सटेंशन डालनी पड़ती है कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए। अ प्रेयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम मेड बाय द डिफेंडेंट शैल नॉट बी ग्रांटेड जस्ट एज अ मैटर ऑफ रूटीन and merely for asking, more so when the period of 90 days has expired. ऐवे ही नहीं अलाउ कर देंगे, राइट, मेरिट्स होने चाहिए मामले में। एक्सटेंशन ऑफ टाइम में बी अलाउड बाय वे ऑफ एन एक्सेप्शन फॉर रीजंस टू बी असाइंड बाय द डिफेंडेंट एंड ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड इन राइटिंग हाउसोएवर ब्रीफली बाय द कोर्ट ऑन इट बीइंग सेटिस्फाइड। रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए कोर्ट का, रीजंस रिकॉर्ड करेगा
Extension of time may be allowed if it was needed to be given for the circumstances which are exceptional, occasioned by reasons beyond the control of the defendant, and grave injustice would be occasioned if the time was not extended. Now, these are the arguments which the defendant have to use. Arguments favoring the defendant. So, defendant will rely on these principles. Defendant will rely on these principles. Okay? Defendant will rely on these principles. Moving to the next part, cost may be imposed and affidavit or document in support of the grounds pleaded by the defendant for extension of time may be demanded depending on the facts and circumstances of the given case. ठीक है, कॉस्ट लगा के टाइम को अलाउ कर दिया जाएगा. Well, this was me on the topic whether condemnation of delay, right to file a written statement not foreclosed, और इसी को हम लोग जनरली कहते हैं condemnation of delay. ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, condemnation of delay when allowed. इस पूरे मामले पे हमने डिटेल में चर्चा करी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी देखा हमने. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमने क्या देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, WS फाइल करने के लिए 45 डेज दिए गए हैं और उसके आगे एक्सटेंड हो सकता है सब कुछ, कैन बी एक्सटेंडेड प्रोवाइडेड क्या है, डिफेंडेंट कोर्ट को क्या करे, कन्विंस करे. डिफेंडेंट कन्विंसेस द कोर्ट, डिफेंडेंट कन्विंसेस द कोर्ट. सेकंड क्या है, कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में, रीजंस इन राइटिंग फॉर अलाउिंग सच कॉन्डेनेशन. फॉर अलाउिंग सच कॉन्डेनेशन. और आपने एक जनरल लॉ देखा, जनरल प्रोसीजरल लॉ क्या है, जनरल प्रोसीजरल लॉ है हमारे सामने ऑर्डर 8 रूल 1 CPC का, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि मिनिमम 30 डेज है, 30 डेज एक्सटेंड होकर कितना हो सकता है 120 डेज, लेकिन 30 डेज के बाद कोर्ट के सामने रीजंस रखने पड़ेंगे और एप्लीकेशन भी डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन या प्रेयर फॉर एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा, तभी करेगा कोर्ट. अगर प्रेयर फॉर एक्सटेंशन भी नहीं मांगे तो कोर्ट नहीं करेगा. ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे समझी हैं. आई होप आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, लीगल एक्सप्लेनर वाले. कुछ नया पहलू, कुछ नया डायमेंशंस, कुछ नए डायनेमिक्स हमेशा आपको देखने को मिलेंगे. और मी एज अ मेंटोर ऑफ लीगल aptitude and legal current affairs will always try to bring something new and you can say proper with respect to demand of CLAT examination for my fellow CLAT aspirants who are very enthusiastic about our videos, about our content, and definitely they rely heavily on our study course material as well as YouTube classes. So this was Harshvardhan Tripathi signing off from today's session. I hope you will make the most out of it. All the very best. See you guys in the next.